Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 4 of history, the Central Islamic Land. We have talked about the introduction of the chapter. We did understand about the sources which tell us about what all happened during this time period. हमने Prophet Muhammad के बारे में, Caliphate के बारे में, ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत के बारे में पढ़ लिया था. एंड इन अ प्रीवियस हमने फिर उमायद एंड एब्बासिड रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. एंड देन ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत के बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद इन अ प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट द क्रूसेड्स एंड वी डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द केस that is stated in our book on page number 90 about Franks in Syria and how the relationship between Muslims and Christians actually changed because of these crusades, and the relationship became one of being not somewhere being always doubtful of the other one and looking at the other one as basically with that ideology ki itna brutality हुई थी during the crusades. Okay, so now we are starting with this topic relating to economy, agriculture, urbanization and commerce. Okay, so here we start with the economy, that is then agriculture, urbanization and commerce during this period, that is Central Islamic landscape. Okay, we know that economy plays a very important place in development of any of the expansion या any of the empire. हमने पढ़ा भी था previous parts में, हमने बहुत बार पढ़ा है कि उनको अपनी political development के लिए हमेशा economy में भी focus करना पड़ता था. तो what was their economy? That is what we will be going through today. तो हमें पता है सबसे primary या principal occupation at that time was agriculture, especially of the settled population. तो जो नई कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी वहां पे जो पॉपुलेशन सेटल हो जाती थी वो क्या करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इस्लामिक स्टेट जो है उन्होंने एज सच कोई बड़े चेंजेस नहीं किए थे टू द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न दैट वाज बीइंग फॉलोड. लैंड जो है इट वाज ओन्ड बाय वेरी बिग you can say land owners, but also along with them there were small peasants who were having control over certain small parts of the area. In some cases in by the state, कभी कभी स्टेट के अंदर यानी कि जो एम्पायर है उनके अंदर भी काफी लैंड जो है उनके कंट्रोल में होता था. In Iraq and Iran we'll see that land existed fairly large units cultivated by the peasants, यानी कि बहुत बड़े बड़े लैंड के पीसेस थे जिनको कौन कल्टीवेट करता था, पेजेंट्स कल्टीवेट करते थे. The estate owners collected taxes on behalf of the state during the Sasanian as well as the Islamic period. यानी जो एस्टेट ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड के जो ओनर्स थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट या जो स्टेट है उनके बिहाफ. ओके, so the estate owners actually collected tax on the behalf of the governing body, and this was basically हम देखेंगे Sasanian period में भी और Islamic periods में भी. ऐसे एरिया जहाँ पे हम बोलेंगे in areas that had moved from pastoral to settled agriculture system, वहाँ पे land was the common property of the village. You understand that means initially उन एरियाज में क्या होता था, पेस्टोरलिज्म होता था. पेस्टोरलिज्म क्या होता है, हर्डिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को ग्रेस करवाना, फिर उनके प्रोडक्ट्स बेचना. तो जहाँ पे पेस्टोरलिज्म था, पर बाद में वहाँ पे उन्होंने पेस्टोरलिज्म की जगह एग्रीकल्चर शुरू कर दिया. ऐसी जगह पे हम नोटिस करेंगे कि जो लैंड जो है वो प्रॉपर्टी किसकी थी, विलेज की थी, पूरे विलेज की, किसी इंडिविजुअल की नहीं थी या किसी बड़े लैंड ओनर की नहीं थी. इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द होल विलेज. फाइनली जो बिग एस्टेट्स है उनको that were abandoned by their owners after the Islamic conquest were acquired by the state and handed over mainly to the Muslim elites of the empire, mainly Caliph family के लोग. अब क्या हुआ, we know जब क्रूसेड हुए थे तो बहुत सारे लोग उधर से उठ के चले गए होंगे
ऑब्वियसली चाहे लड़ाई हुई होगी वहां पे, जो भी लूटिंग एंड प्लंडरिंग हुई होगी, एंड दे वुड हैव थॉट कि नाउ दे आर नॉट सेफ, तो दे जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस। और उनके पास बड़े बड़े एस्टेट थे, उनके एस्टेट का क्या करें, उनके एस्टेट जो है वो कंट्रोल में किसके आ गए हैं, स्टेट के। और वो उनका उन पे काम करने के लिए और उनका मैनेजमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द मुस्लिम एलिट्स, यानी कि मुस्लिम हाईफाई जो हाई सोसाइटी के लोग थे, और स्पेशली कौन से, कैलिफ के फैमिली के लोगों को दे दिए गए वो वाले लैंड कंट्रोल करने और उनका समय पूरा मैनेज करने के लिए। ये जो स्टेट है यहाँ पे, उनका हम देखेंगे that had overall control over agriculture lands, क्योंकि जो bulk of its income थी land से, from land revenue once the conquest was over, because जब तक कॉन्क्वेस्ट है तब तो आप जिस एरिया को हरा रहे हो वहां से बहुत सारे सामान ले लेते हो इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अदर मटेरियल, ठीक है। बट जब कॉन्क्वेस्ट खत्म हो गया तो आप जो एक स्टेट है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाता है, रेवेन्यू। और क्योंकि एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, तो लैंड रेवेन्यू क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था इसके लिए, स्टेट के लिए। So we know that जो major of the bulk of income of the state came from the land revenue, और इसीलिए land revenue जो था that was somewhere collected on various bases and was in good amount. जो land that was conquered by the Arabs that remained in the hands of the owners were subject to tax, जिसको बोला जाता था खरच, ठीक है। खरच जो है it varied from half to 1/5 of the produce। हाफ मतलब हो गया 50%, 1/5 is 20%। सो यानी जो खरच है इट विल वेरी फ्रॉम हाफ टू अराउंड 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ कल्टीवेशन। भाई अगर कल्टीवेशन अच्छी हुई है तो उसके हिसाब से वो लोग टैक्सेस लेंगे ज्यादा कम। ऑन द अदर हैंड वी विल सी the land that were held or cultivated by Muslims, the tax levied was 1/10, ठीक है, 1/10 that is called ushur, ठीक है, 1/10 of the produce. Now when non-Muslims started to convert to Islam to pay lower taxes, this reduced the income of the state. Now understand the logic behind it. जो land that were conquered by Arabs but remained in the hand of the owners, यानी कि ऐसे लोग जो ओनर्स थे लैंड के, उनके पास ये लैंड, पर वो पूरी एरिया अरब्स के अंदर आ गई, तो जो वो टैक्स लेते थे इसको बोलते थे खरच। खरच जो ऑलमोस्ट हाफ से लेके कितना तक होता था, 1/5 तक, और ये इनको देना पड़ता था ऑफ द प्रोड्यूस। बट जो लैंड या जो जिसको मुस्लिम्स के अंदर थे या कल्टीवेट मुस्लिम करते थे, उनका टैक्स सिर्फ 1/10 था, तो यानी कम था इनका टैक्स। तो अब क्या किया, जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। सो दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम टू पे लोअर टैक्सेस, जिसके कारण इफेक्ट क्या हुआ, जो स्टेट है उसकी कम हो गई, क्योंकि पहले जो नॉन मुस्लिम्स थे वो ज्यादा टैक्स दे रहे थे, अब वो लोग मुस्लिम्स हो गए तो वो कम टैक्स दे रहे हैं, तो स्टेट की इनकम इससे कम होने लगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, शॉर्टकट को प्रॉब्लम करने के लिए कैलिफ ने पहले तो बोला कन्वर्जन्स को डिस्करेज करते थे, और बाद में उन्होंने बोला सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है, टैक्सेशन सेम है सबके, चाहे आप मुस्लिम्स हो चाहे आप नॉन मुस्लिम्स हो, ठीक है। पहले डिस्करेज किया, उसके बाद क्योंकि डिस्करेज करेंगे तो ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम्स है वो ज्यादा टैक्सेस देंगे, और उसके बाद बोला कि ठीक है इसको क्या करो आप यूनिफॉर्म कर दो टैक्सेशन सिस्टम। फ्रॉम 10th century onwards हम देखेंगे स्टेट ऑथराइजेस ऑफिशियल्स टू क्लेम देयर सैलरीज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल रेवेन्यूज फ्रॉम टेरिटरीज व्हिच वर कॉल्ड इक्ताज या रेवेन्यू असाइनमेंट्स। 10th century onwards से क्या हुआ, स्टेट ने जो ऑफिशियल्स थे उनको ये बोला, क्या बोला ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल्स को ये बोला कि आप अपनी सैलरीज कहाँ से लेंगे, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू से लेंगे जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, यानी जितना आपको रेवेन्यू देना है ना स्टेट को,
उससे ज्यादा आप कलेक्ट करो, उतना ज्यादा करो कि आपकी सैलरी निकल आए। ठीक है, इनको बोलते थे इक्तास, क्योंकि उन टेरिटरीज का रेवेन्यू असाइनमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई थी, इन लोगों को, यानी कि जो ऑफिसर्स थे स्टेट, जिन ऑफिशियल्स को स्टेट ने ऑथराइज किया। तो तीन चीजें पढ़ी है हमने, खर्च और उश्र खर्च वो टैक्सेस था जो अराउंड हाफ से लेके 1/5 तक था, और उश्र जो है वो 1/10 था। बाद में चेंजेस होने लग गए, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम्स बनने लग गए, बट बाद में डिस्करेज किया कन्वर्जन को, और बाद में क्या किया, यूनिफॉर्म कर दिया सबके लिए टैक्सेशन। 10th सेंचुरी से ऑफिशियल्स को बोला गया आप स्लेव अपनी जो सैलरीज है वो एग्रीकल्चर रेवेन्यू से ही क्लेम करोगे, और आपके एक एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है इक्ताज यानी कि रेवेन्यू असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हम देखेंगे कि इनका एग्रीकल्चर और टैक्सेशन कैसा था। इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी जो है तभी आती है अगर आपके एरिया में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी हो, यानी अगर पॉलिटिकली बार बार लड़ाई हो रही है, बार बार रूलर चेंज हो रहा है, तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, और ना यूनिफॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं की जा सकती। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, वी मीन कि एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी जो है इट विल गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, बट आप नोटिस करोगे कि जनरली क्या होता है, every economic, your country will economically be moving towards the upper growth only if political stability है। तो यहीं पे एग्रीकल्चर की भी वही बात है, इन तो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी इज एक्चुअली directly somewhere connected with the political stability, and it is necessary political stability for agriculture prosperity. So in many areas, especially जो नाइल वैली है, the state supported irrigation system, construction of dams, canals, digging of wells, and often equipped with water wheels जिसको नोरिया बोलते थे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी गुड हार्वेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टेट जो है इरिगेशन सिस्टम पे फोकस कर रही है, कौन से एरिया में, नाइल वैली के अराउंड, डैम, कनाल, डिगिंग ऑफ वेल्स, वाटर व्हील्स, नोरिया, ये सारी चीजें थी। तो ऑब्वियसली अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है और स्टेट ही प्रोवाइड कर रही है तो एग्रीकल्चर तो डेवलप होगा ही होगा। ठीक है, देन अलोंग विद दिस हम देखेंगे कि ये गुड हार्वेस्ट के लिए ये सारी चीजें जरूरी थी और हो रही थी। इस्लामिक लॉ जो है, इस्लामिक लॉ टैक्स कंसेशन देता था उन लोगों को जो लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। मतलब अगर पहले आपके पास लैंड है जिसपे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो और कोई काम कर रहे हो, अगर आप उसको कल्टीवेशन के अंदर लाओगे तो स्टेट आपको क्या देगी, कुछ कंसेशन देगी। ठीक है, कुछ कम आपको टैक्स देना पड़ेगा और कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियली हम देखेंगे पीजेंट के इनिशिएटिव से और स्टेट के सपोर्ट से कल्टीवेबल लैंड जो है वो बहुत एक्सपैंड हो गया, प्रोडक्टिविटी राइज हो गई थी, जबकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं थे। फिर भी बहुत सारे क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल्स, ये सारे के सारे ग्रो किए जाते थे, and not only were they grown but they were even exported. So we can assume that they were focusing on agricultural production and for kind of increasing their agriculture production, variety of vegetables and other food grains were grown so that they could even be exported to Europe. So आपको ये नाम याद रखने हैं जितने भी अपने crops के नाम हैं यहाँ पे, okay? And you can see there is a box that is given in your book, grain harvesting, the laborer, lunch is being brought on a tray. ये Arabic version है एक सूजू गैलन बुक का, एंटीडोट्स, बेसिकली स्टोरी ऑफ डॉक्टर गैलन ने बताया हुआ है इसमें, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे इनके कुछ मेंशन है कि किस टाइप से हम बेसिकली देखेंगे एग्रीकल्चर कैसे इम्पोर्टेंट हो गई थी और कैसे एग्रीकल्चर जो है उसको प्रॉस्पर किया जाए। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट अर्बनाइजेशन। ठीक है,
सो अर्बनाइजेशन की बात करेंगे अगर हम, इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है इट फ्लरिश एज अ नंबर ऑफ सिटीज ग्रू फिनोमिनली, मतलब बहुत सारी सिटीज डेवलप हो गई थी इस टाइम पे। बहुत सारी सिटीज जो है दे वर फाउंडेड मेनली टू सेटल अरब सोल्जर्स who form the backbone of the local administration। यानी सिटीज जो है वो पहले सेटअप क्यों की गई थी, इसीलिए सेटअप की गई थी क्योंकि जो अरब के सोल्जर्स हैं, ठीक है, इनको सेटल करने की, मतलब इनके लिए स्पेशली ये सिटीज बना दी थी। इनको जो अरब सोल्जर्स इनको बोला जाता था जुन, और अरब सोल्जर्स के लिए इसीलिए बनाई जाती थी क्योंकि ये जो है बैकबोन है ऑफ द होल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अलोंग द क्लासेस ऑफ गैरिसन सिटीज, यानी जहाँ पे सोल्जर्स मेनली रखे जाते हैं टू गार्ड द सिटी। हमें पता है ये एरिया जहाँ पे अगेन एंड अगेन कोई ना कोई टाइप की अटैक हो रहा था या ये लोग वॉर कर रहे थे, तो गैरिसन सिटीज थी जहाँ पे मेनली सोल्जर्स रहते थे। तो इन अमंग द क्लास ऑफ गैरिसन सिटीज व्हिच वर कॉल्ड मिस्र, द अरबिक नेम ऑफ इजिप्ट, आपने सुन भी रखा होगा मिस्र बोलते हैं, अरबिक नेम है इजिप्ट का, जहाँ पे कूफा और बसरा इराक में थे, फुस्तात एंड कैरियो थे इजिप्ट में। ये सेटअप किए गए थे। विद इन हाफ अ सेंचुरी of its establishment as the capital of Abbasid Caliphate, the population of Baghdad had reached around 1 million। तो जब हमने देखा था कि एबिसिड कैलिफेट का जो कैपिटल बगदाद की बात करें, जैसे ही इसको कैपिटल बनाया गया तो हम देखेंगे विद इन हाफ अ सेंचुरी अराउंड 50 इयर्स पॉपुलेशन कितनी हो गई थी इनकी, 1 मिलियन, ठीक है। एंड अलोंगसाइड दीज सिटीज देयर वर ओल्डर टाउन्स भी थे, जैसे डेमस्कस थे, इस्पाहान थे, समरकंद थे, ये सारे भी सिटीज अभी ओल्डर टाउन्स थे which received a new lease life। new lease life मतलब एक तरीके से नई लाइफ मिल गई इनको, जो बिकॉज ये टाउन्स थे अब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे थे, पर क्योंकि अब वापस से सिटीज बना रहे हैं तो इनको एक नई लाइफ मिल गई, ये न्यूली डेवलप्ड मतलब और डेवलप्ड सिटीज जैसे बन गए। इनका साइज और पॉपुलेशन जो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जिसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंशन होने लग गया, किस चीज का, प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का एक्सपैंड होने लग गया। रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, शुगर जो है, जो अर्बन मैन्युफैक्चरर्स यूज करते थे वो भी एक्सपैंड हो गया। एक वास्ट अर्बन नेटवर्क यहाँ पे फाइनली डेवलप हो गया था, एक टाउन से दूसरे टाउन को लिंक करते हुए एक सर्किट जैसा बन गया था, ठीक है। यानी हम देखेंगे एक सिटी से दूसरे सिटी को, एक टाउन से दूसरे टाउन को लिंक करने के लिए इन्होंने बहुत डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जो ये लोग रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे थे जो अर्बन एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए था, दैट वाज आल्सो इंक्रीजिंग लेवल, ठीक है। तो पूरा हम बोलेंगे डेवलपमेंट जैसे हो गया था। फिर हम देखेंगे एट द हार्ट ऑफ द सिटी 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस होते थे जो कल्चरल और इकोनॉमिक पावर को डिपिक्ट करते थे। सबसे पहले था कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं फॉर रिलीजियस, फॉर वर्शिपिंग whatever religion or god they believe, so group of people who assemble there for religious worship etc। तो congregational mosque था एक, तो मस्जिद अल जामी, बिग इनफ टू बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत बड़ा था। एंड देन नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल मार्केट प्लेस, जिसको सुख बोला जाता था, जिसमें शॉप्स थी एक रो में, मर्चेंट्स लॉजिंग्स थी जिसको बोलते थे फंदुक, मतलब वहां पे लोग रुक सकते हैं, मर्चेंट्स के एरियाज जैसे थे, मर्चेंट्स आके रुक सकते थे। ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग आएंगे तो करेंसी चेंज करने के लिए, मनी चेंजर करने के लिए भी उस मार्केट में लोग थे, सामान थे, मर्चेंट लॉजिंग्स थी एंड ऑफिस ऑफ मनी चेंजर भी थी। सिटीज जो है देवर होम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको बोला जाता है अयान या आईज ऑफ द स्टेट, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान रखते हैं। स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स थे जिनको हम बोलते हैं तुजर, who lived close to the center, basically who lived close to the center, and other ordinary citizens और soldiers जो है
दे हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स इन द आउटर सर्कल, ठीक है। तो स्कॉलर्स और मर्चेंट सेंटर में रहते थे, सेंटर के आसपास। ऑर्डिनरी पीपल और सोल्जर्स जो वो आउटर सर्कल के तरफ रहते थे। ईच फिटेड विथ इट्स ओन मॉस्क, सबका अपना एक छोटा मॉस्क भी था, या फिर चर्च भी होते थे वहां पे, और वहां पे सिनेगॉग भी होते थे, ठीक है। एंड देन अलोंग सिनेगॉग क्या होता है, ज्यूइश का टेंपल होता है। सब्सिडरी मार्केट एंड पब्लिक बाथ भी था वहां पे, यानी सब्सिडी यानी मेन मार्केट तो उधर हमने देखा था सेंटर में, इसके अलावा एक और मार्केट था और पब्लिक बात भी होते थे, ठीक है। हम एन इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस, एंड इसके अलावा हम देखेंगे एट द आउटस्कर्ट्स, बाहर की तरफ हाउसेस होते थे ऑफ द अर्बन पुअर पीपल ऑफ द अर्बन सोसाइटी। एक मार्केट था ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, जो कंट्री साइड ब्रॉड फ्रॉम द कंट्री साइड से जो ये लोग लाते थे। कारवां स्टेशन होते थे जहां से लोग आते जाते थे। अनक्लीन शॉप्स होती थी, सच एज दोस डीलिंग विद टैनिंग एंड बुचरिंग, एनिमल स्किन निकालते हैं ना, है ना। एंड बुचरिंग आपको पता ही है, एनिमल को कट करके एनिमल से रिलेटेड जो भी, अगर सपोज दे आर यूजिंग इट फॉर व्हाटएवर पर्पस। बियॉन्ड, ये तो हमारा आउटस्कर्ट्स में है। बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वर इन्स फॉर पीपल टू रेस्ट व्हेन द सिटी गेट्स वर शट एंड सिमेट्रीज। इसका मतलब क्या है कि जो सिटी वॉल है उसके बाहर क्या होते थे, लोगों के रहने के लिए जगह जैसे बनी होती थी, रेस्ट हाउसेस जैसे, क्योंकि अगर उस टाइम आए जिस टाइम सिटी गेट है तो कहाँ रुकेंगे, तो इनमें रहते थे। और सिमेट्रीज रहती थी बेसिकली जहाँ पे डेड बॉडी वगैरह करते हैं, ठीक है। देन देयर वर variations on the typology depending on the nature of the landscape, political tradition and the historical events. तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता था, बट कोई भी एरिया है उस पे मतलब वहाँ का लैंडस्केप क्या है, या वहाँ के कल्चर क्या है, या वहाँ पे पॉलिटिकल रूल कितना कैसा है, क्या पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर हम देखें कि इतने बड़े एरिया के अगर ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं और हम बार बार अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है क्या एक जो पॉलिटिकल हेड है वो सेम हो, यानी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो, तभी तो इतने एरिया के ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे, ऐसे हो। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, और जो डिमांड है यहाँ पे हम देखेंगे किस चीज की, जब भी अर्बन सिटीज डेवलप होती है हम नोटिस करेंगे उनकी एक अलग डिमांड्स होती है, और अगर इनमें रिच मर्चेंट्स हो तो लग्जरी या लग्जूरियस आइटम की भी डिमांड्स होती है। तो अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ एंड लग्जरीज एनलार्ज द सर्किट ऑफ एक्सचेंज। आप फूड आइटम्स कहाँ से लाओगे, कंट्री साइड से। आप लग्जूरियस आइटम या तो अर्बन एरियाज में बनेंगे या बाहर भेज रहे हो, तो एक सर्किट डेवलप हो जाएगा, पूरा ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम हो जाएगा, लिंकेज अच्छी हो जाएगी, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तो थी। इन सब चीजों में इन्होंने खुद तो अपनी तरफ से तो कोशिश की ही की थी, बट इसके साथ साथ और कुछ जो चीजें हम देखते हैं इनको हेल्प हुई इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग, वो था ज्योग्राफी। इनकी ज्योग्राफी ऐसी थी जिसके कारण इनका ट्रेड बहुत प्रॉस्पर हो गया। ये इनकी एरिया स्प्रेड हो रही थी बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है पूरा, हमें पता है, आई शोड यू द मेडिटेरेनियन सी लोकेशन, और इंडियन ओशन अपने को पता है इंडिया की साइड है। सो पूरा इतने एरिया तक क्योंकि वो स्प्रेड आउट था, फॉर 5 सेंचुरी अरब और ईरानियन ट्रेडर्स जो हैं वो पूरा मैरीटाइम ट्रेड जो है, ओशनिक ट्रेड जो है, चाइना, इंडिया और यूरोप, उसके ऊपर पूरा उनका कंट्रोल था। समवेयर वही मेन ट्रेड करते थे, मोनोपोली थी उनकी, मोनोपोलाइज द ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी। जो एक्सपेंशन था, जो ट्रेड है, इट पास थ्रू 2 मेजर रूट्स, मेनली एक तो रेड सी से और पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ और मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ये मूव करते थे। जो हाई वैल्यू गुड्स थे, जो बहुत एक्सपेंसिव गुड्स थे, उनका हम देखेंगे
कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए बहुत सूटेबल थे, स्पेशली स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, पोर्सिलिन। आपको पता है पोर्सिलिन के यूटेंसिल्स जैसे आते हैं, ठीक है, गन पाउडर, ओके। सो ये हाई वैल्यू वाले चीजें होती थी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होती थी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, पोर्सिलिन और गन पाउडर, जिनको शिप किया जाता था फ्रॉम इंडिया and China to the Red Sea ports of Aden and Ayadhab and the Gulf port of Siraf and Basra. समझ गए, इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स जैसे लेते थे जनरली, और पोर्सिलिन और गन पाउडर्स चाइना वगैरह से लेके ये क्या करते थे, इनको शिप करके रेड सी पोर्ट्स ऑफ एडन और अयादाब और गल्फ पोर्ट्स ऑफ सिराफ और बसरा से लेके जाते थे, ठीक है। फ्रॉम हेयर यहाँ पे हम देखेंगे जो मर्चेंट्स है वो इनको कैरी करते थे ओवरलैंड इन कैमल कार्स। कैमल कारवास डेजर्ट एरिया है, रेड सी वगैरह तक पहुंच जाते थे, फिर जब डेजर्ट एरिया आता था तो क्या करेंगे, कैमल कारवास पे लेके जाते थे टू द वेयर हाउसेस जहाँ पे ये स्टोर किए जाते थे, ठीक है। तो ये टर्म जो है मैगजीन, ये मैगजीन से आया है, जिसका मतलब कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स है, ठीक है। अलग अलग आर्टिकल्स को यानी अलग अलग चीजों को कहाँ पे कैमल कारवा से कैरी करके कहाँ, ये जो बसरा और जो भी ये एरियाज है अपनी जो हमने देखी है रेड सी के अराउंड पोर्ट्स और गल्फ पोर्ट्स जो है एडन, अयादाब और सिराफ, बसरा, ये चार याद रखना, एडम, अयादाब और सिराफ और बसरा। यहाँ से ये कैमल कारवा में इनको ले जाते थे टू वेयर हाउसेस, एंड ये टर्म एज दे सेइंग इट एज मैगजीन, ओरिजिन है मैगजीन जिसका मतलब है आर्टिकल्स ऑफ बगदाद, यहाँ से लाते थे, यहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर करते थे। डेमस्कस और जो हमारा डेमस्कस और एल्कोपोर जो है they were used for local consumption and onward transmission, यानी यहाँ पे एक तो खुद कंज्यूम करते थे ये लोग, खुद यूज करते थे इन चीजों को, और इसके साथ साथ क्या करते थे, आगे इनको ट्रांसमिट करते थे। कारवांस जो पास करते थे मेका के थ्रू वो और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट थे। कोई बता सकता है क्यों? As we know that Mecca is an important religious center for the followers of Islam, तो जब कारवाज यहाँ से पास होते थे बहुत बड़ा हो जाता था, क्योंकि अगर हज वाला टाइम पीरियड कोइंसाइड हो जाए, हज वाला टाइम पीरियड कोइंसाइड हो जाए जब ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक यहाँ पे हम बोलेंगे सोर्स ऑफ इनकम और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है दैट टाइम। एंड देन अलोंग विद दैट हम देखेंगे कि it actually coincided with sailing season of Mycenae, that is origin of word monsoon in Indian Ocean. हमें पता है, we have studied in junior classes, I suppose 9th में, कि मॉनसून विंड्स के हिसाब से अरब ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग करते थे कि हवा इस साइड मूव करेगी तो इस साइड इंडिया की तरफ जाएंगे, जब रिट्रीट होगी तब ऐसे जाएंगे। तो ये वो वाला टाइम पीरियड की बात करें कि मॉनसून भी कोइंसाइड करता था, तो दिस वाज द एरिया वेरी बिग. This movement became Karwas passing became very big during this time period. ठीक है. At Mediterranean end of these trade routes, exports to Europe from the port of Alexandria were handled by the Jewish merchants. यानी कि मेडिटेरेनियन साइड पे जो ट्रेड रूट्स है जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप में पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया में, उसको कंट्रोल मेनली कौन करते थे? ज्यूइश मर्चेंट, ठीक है. Some of whom were directly मतलब वो कुछ ऐसे थे जो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करते थे, एंड ऐसा लगता था उनके पास लेटर्स प्रिजर्व होते थे फॉर गेंजिया कलेक्शन टू शो कि हम लोग डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है. बट 10th सेंचुरी से क्या हुआ? 10th सेंचुरी से हम देखेंगे कि रेड सी रूट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि कैरियो एज सेंटर ऑफ कॉमर्स और पावर हमने पढ़ा था. कैरो भी बोलते हैं जिसको, हाँ, कैरो जो है वो सेंटर ऑफ कॉमर्स और पावर बन गया था, जिसके कारण जो ईस्टर्न वाले गुड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी. फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटी ऑफ इटली, क्लास जब हमने क्रूसेड्स का लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2 चेंजेस आए थे. एक तो
इस्लाम का और सॉरी जो फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम एंड जो क्रिश्चियंस है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत मतलब सस्पिशियन और बहुत समवे एनिमिटी वाली हो गई थी। और दूसरा था कि चाहे पावर इस्लाम का आ गया था या इस्लामिक रूलिंग आ गई थी यहाँ पे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स वाला, पर इटली एज अ मर्चेंट एरिया मर्चेंट टाउन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो यही आ गया था कि 10th सेंचुरी से एक तो कायरो का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था ट्रेड ऑफ कॉमर्स एंड पावर के फॉर्म में, एंड ग्रोइंग डिमांड ऑफ ईस्टर्न गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटी ऑफ इटली। तो हमने इसमें एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स किया है क्लास। एक बॉक्स आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 93 में, पेपर, गैंजिया रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि जो टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर है वो इनके पास कैसे है। चाइना के लोगों से जब लड़ाई या जब ट्रेडर्स आते थे तो कुछ को इन्होंने रख लिया था टू टीच देम हाउ टू मेक दिस पेपर, ठीक है, और अपने अलग कैसे बनाते थे, इनका अलग कैसे था एज कम्पेयर टू चाइना। तो ये बेसिक है रिलेटिंग टू पेपर, गैंजिया रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री की कैसे लिनन चाइना से लाके जो इनिशियली एक सीक्रेट था उन्होंने उनको अपने अंडर रखा और बोला कैसे पेपर बनाते हो, उनको रखा, उनसे फिर सीखा एंड देन दे न्यू दिस आर्ट, ठीक है। और क्या क्या एज आई सेड चेंजेस है इनके पेपर बनाने में उनके पेपर बनाने में, और क्या चेंजेस है इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाने में एज अ सोर्सेज एटसेट्रा। दिस इज द पोर्शन दैट वी विल डू टुमारो. So today we have done in detail about the economy, agriculture, urbanization and commerce. So I suppose everything is clear to you. If you have any doubt relating to any topic जितना आज तक हमने अभी तक कर लिया है, और स्पेशली अगर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, कॉमर्स, जो अलग टैक्सेस है, कॉमर्स क्या था, अर्बनाइजेशन और कॉमर्स में ट्रेड से रिलेटेड ओवरऑल जितना भी चेंजेस हमने देखे हैं from this chapter starting till this portion of our economy, ठीक है, agriculture, urbanization and commerce. Just give it a reading and come back if you have any doubts. Come back with your doubts and we'll discuss and solve. Okay, so this is it for today. Now we'll meet in the next class.